Well, in the last class, we discussed the concept of money supply and components of money supply as M1. We had four measures of money supply: M1, M2, M3 and M4. We talked about M1 in detail as it is in our syllabus. M2, M3, M4 are not in our syllabus. For the sake of knowledge, as we move towards M1, M2, M3, M4, its liquidity comes down, but broadness of the measures goes up. Today we will discuss the other concepts, as money multiplier is one of the important concepts. Money multiplier, here money multiplier, we have two terms. Multiplier, who multiplies what? That is money. Commercial bank gets deposit from public and advances loan. It is an important function of commercial banks. Commercial bank creates credit more than its initial deposit. How much it will create credit depends upon the value of money multiplier. It's why we have to take the concept of money multiplier. It measures the amount of money that the banks are able to create in form of deposits with every unit of money it keeps as reserves. Suppose bank gets a deposit of rupees 100 and value of money multiplier is 4. It means bank will create the deposit equal to 400 rupees. 100 rupees is multiplied by 4, that is the value of money multiplier. Money multiplier is equal to 1 upon LRR. LRR is legal reserve ratio. LRR is legal reserve ratio. A part of bank's deposit is kept in form of reserve. We have two reserves, one is CRR and other is SLR. CRR, it is that part of the deposit of the initial deposit of bank which is to be kept with RBI. CRR कैश रिजर्व रेशियो, यह बैंक के डिपॉजिट का वह रेशियो है जिसे बैंक को आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखना होता है. इट मीन्स दिस proportion of initial deposit cannot be advances to the public or others. SLR, it is also a reserve. It is to be kept by the bank itself. The fundamental difference between CRR and SLR, statutory liquidity ratio, is it is that portion of bank deposit which is to be kept with RBI as a reserve, whereas SLR, statutory liquidity ratio, is that part of bank deposit which is to be kept by bank itself in form of reserve. Suppose 1000 रुपये बैंक के पास जमा हुए. अब इस 1000 रुपये में 5% जो है कि CRR के रूप में कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा करना होता है. इट मीन्स 50 रुपये सेंट्रल बैंक के पास जमा हो गए. SLR is 20%. इट मीन्स 1000 रुपीज का 200 रुपये जो है
SLR के रूप में बैंक को अपने ही पास इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट रखना होता है। लिक्विड एसेट का मतलब है कि व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड बैंक कैन इनकैस्ट इट इनटू मनी। जैसे गोल्ड है, बैंक के पास गोल्ड, उन्होंने गोल्ड का रिजर्व रखा है, जब चाहे वह अपने इस गोल्ड को मनी में कन्वर्ट कर सकता है। उन्होंने शेयर्स रखा है, शेयर को जब चाहे वो मनी में कन्वर्ट कर सकता है। यह उनके सेफ्टी के लिए है, क्योंकि बैंक जो रन करती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्टीशिप, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, दैट whenever deposited amount is needed by the public, it can be withdrawn and bank will pay it. On that basis, bank always secure itself by keeping some reserve. So that CRR and SLR. LRR, legal reserve ratio, this is CRR plus SLR. But it is not always equal to LRR. There are some fractional deposits kept by the RBI. But important components of LRR is CRR and SLR. We see this, if a formula we see M money multiplier or credit multiplier is equal to 1 upon CRR. And other formula is 1 upon LRR. This is credit multiplier or money multiplier. Both can be given. We have not to confuse. Okay? The money multiplier, there is inverse relationship between the value of LRR and value of money multiplier. LRR का वैल्यू जितना अधिक होगा, मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू उतना ही कम होगा। सपोज 20% इज LRR, इसका मतलब है कि मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू M इज इक्वल टू 1 अपॉन 20% इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 5। इफ LRR इज 25%, then M is equal to 1 upon 25% is equal to 1 upon 25 into 100, that is 4. As value of LRR increases, the value of money multiplier falls. It means bank, the creation of credit or money creation depends upon the value of money multiplier, and which depends upon the value of LRR. Higher the value of LRR, lower the value of money multiplier. Lower the value of LRR, higher the value of money multiplier. This is the relationship between LRR and money multiplier. Suppose deposit, initial deposit of bank is 1000 and LRR is 20%. It means money creation or credit creation will equal to 1 upon LRR into initial deposit. 1 upon 20% into 1000 is equal to 100 by 20 into 1000, that is 5,000 rupees. इसका मतलब है अगर कॉमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपये आते हैं और LRR का वैल्यू 20% है, तो बैंक जो है, बैंक का डिपॉजिट 5000 के रूप में हो जाएगा। इसमें कुछ अमाउंट जो है कि लोन के रूप में होंगे और कुछ अमाउंट उनके पास जो है कि
रिजर्व रह जाएगा। तो ये हमारा जो है, जिसको हम लोग यहां देखेंगे, जिस समय कॉमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन को देखेंगे वहां इसको हम डिटेल देखेंगे। नाउ वी गॉट द कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। आफ्टर दैट next concept is commercial bank. एक यहां जो कॉमर्शियल बैंक है, एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक जो काम करती है पैसे के लेन देन का काम करती है। जितने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसे के लेन देन का काम करती है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूटीआई, पोस्ट ऑफिस में भी पैसे का लेन देन होता है। तो इस तरह जो है कि बहुत सारे ऐसे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसे के लेन देन का काम करती है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहे जाते हैं। और उन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक जो है बैंकिंग सिस्टम है, बैंक्स हैं और कमर्शियल बैंक है जो पैसे का लेन देन करती है और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करती है। ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कमर्शियल बैंक एंड ऑल कमर्शियल बैंक्स। तो इसके लिए जो है कि हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। अब देखिए कि इसमें एक चीज है कि इट इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accepts deposit from public and advances loan। यहां एक थोड़ा सा जो है कि इसको हम लोग कर लें, एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड एडवांसेस लोन। दिस इज कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है कि वह पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और उधार देने का काम करती है। डिपॉजिट एक्सेप्ट जो है कि एलआईसी में अगर हम अपना इंश्योरेंस करवाते हैं तो वह भी हमसे जो है कि डिपॉजिट को प्रीमियम के रूप में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और हमें जो है कि उधार देने का भी काम करती है। लेकिन यह जो है कि चेकेबल डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती है। चेकेबल डिपॉजिट का मतलब है कि whenever amount is required by the depositors, it can be withdrawn with the help of check. It's why checkable facilities is provided by the banks to the depositors. Other financial institutions do not provide the checkable facility. On the other hand, पोस्ट ऑफिस में भी हम लोग पैसे जमा करते हैं और पोस्ट ऑफिस में हम विड्रॉ भी करते हैं, लेकिन वह उधार देने का काम नहीं करती है, लॉन्ग एडवांस नहीं करती है और उनके पास जो है कि चेक की फैसिलिटी नहीं होती है। इसलिए पोस्ट ऑफिस भी बैंक नहीं है। तो कमर्शियल बैंक, it is that financial institution which accepts checkable deposit from public. Another important thing, checkable deposit from public and advances loan. तो यहाँ public means individual as well as institution like firms, factory etc. पब्लिक में जो है कि ये सारी चीजें आती हैं, इनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और इनको उधार देने का काम करती है। दैट इज कमर्शियल बैंक। तो जैसा डेफिनेशन में है, अगर फंक्शन देखेंगे तो एक जो है उसका फंक्शन हो गया कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो कमर्शियल बैंक एक जो है हमारा सेविंग डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, करेंट अकाउंट डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, रैकरिंग डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और एक जो है वह फिक्स्ड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है।
तो डिपॉजिट में दो तरह के डिपॉजिट हो गए, एक जो है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, दूसरी ओर जो है रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। इसको जो है डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। ये जो है टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट कहा जाता है, क्योंकि इसको जो है इट कैन बी विथड्रॉन ऑन द डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर्स। जब चाहेंगे हम इसको जो है कि निकाल सकते हैं। यह जो है कि हमारे डिमांड पर इसकी अवेलेबिलिटी होती है। जैसे अगर जो है कि हम लोग एटीएम में जाते हैं, एटीएम जो है कि हमसे जब उसमें लेते हैं तो बैंकिंग में जाते हैं, बैंकिंग में जाने के बाद जो है कि वो हमें ऑप्शन देती है। एक ऑप्शन जो है कि सेविंग अकाउंट डिपॉजिट का होता है जिससे पैसे निकाल सकते हैं, और दूसरा करंट अकाउंट डिपॉजिट का। उसमें आप कहीं जो है कि रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं देखेंगे। तो ये जो है कि डिमांड पर ऑन द डिमांड ऑफ डिपॉजिटर्स, और यह जो है कि एक फिक्स्ड पीरियड के बाद हम इसको जो है कि मनी में कन्वर्ट कर सकते, इसको हम निकाल सकते हैं, जिसको मैच्योरिटी पीरियड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमने आरडी 5 साल के लिए करवाया है, हमने फिक्स्ड डिपॉजिट 5 साल का किया है, तो 5 इयर्स की मैच्योरिटी के बाद जो है कि ये पैसे विथ इंटरेस्ट हमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर कभी हमें इसकी आवश्यकता पड़ गई अचानक कि हमें पैसे की आवश्यकता है और हमने फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा है, रेकरिंग डिपॉजिट के रूप में रखा है, तो इन पैसे को हमें कन्वर्ट करने होंगे सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में। एक एप्लीकेशन डाल के इनको हमें कन्वर्ट करना होगा। इसलिए इस डिपॉजिट को, फिक्स्ड डिपॉजिट को, यह माना जाता है इट इज नियर मनी। नियर मनी का एक जो है ये फॉर्म है कि इजिली जो है कि हम इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आफ्टर स्पेन ऑफ टाइम इट कैन ऑल्सो बी विड्रॉन। दिस इज नियर मनी। इस पर हमारा ट्रांजेक्शन नहीं होता है, इस पर हमारा क्विक ट्रांजेक्शन होता है कि पैसे निकाले, हमने उसको यूज कर लिया। इसके अलावा भी जो है कि बैंक के कई फंक्शंस हैं, उन इसमें जो है उसके बाद एडवांसिंग लोन, तो दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। उनका तो मेन काम है कि हम लोगों से पैसे को एक्सेप्ट करती है और हमें ही उधार देने का काम करती है और प्रॉफिट अर्न करती है। तो ये उनके प्राइमरी फंक्शन में हुआ कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन। इसके बाद कई फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों के सिलेबस में कॉमर्शियल बैंक के कंसेप्ट्स हैं और क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक है। उनके फंक्शंस नहीं है, मीनिंग है, उनके फंक्शंस नहीं है। सेंट्रल बैंक के फंक्शन को हमें देखना होगा। तो ये हो गया अपना कॉमर्शियल बैंक। और एक क्वेश्चन जो है कि हमें आता है कि डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। तो इसलिए अगर हमने कॉमर्शियल बैंक के मीनिंग को समझ लिया, कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन को हमने समझ लिया, उसी तरह जो है कि सेंट्रल बैंक के मीनिंग और उनके फंक्शंस को हम समझेंगे, तो दोनों के बीच जो है कि इजीली डिफरेंस कर सकते हैं। सेकेंड इज दैट इज कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का एक अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन होता है, सुप्रीम बॉडी होती है मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। जैसे इंडिया में जो है कि जो भी मॉनेटरी सिस्टम है, इसको मॉनिटर करने का, इसको कंट्रोल करने का, इसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई का जो है कि फॉर्म किया गया है 1935 में एक एक्ट के आधार पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक जो है कि सेंट्रल बैंक हम लोग देखते हैं कि मार्केट में देख रहे हैं कि दिस इज सेंट्रल, जैसे बाटा के बगल में देख सेंट्रल बैंक, मिर्चाईबाड़ी चौक पे देख रहे हैं दैट इज सेंट्रल बैंक। लेकिन वह सेंट्रल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, क्योंकि वह पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उन्हें हमें जो है उधार देता है। लेकिन सेंट्रल बैंक का मीनिंग है दैट इज इट इज रिलेटेड टू
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे अमेरिका का सेंट्रल बैंक रिजर्व, फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये हर कंट्री का अपना अपना एक अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन होता है। उसी तरह इंडिया का भी जो है कि एक अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक इट इज एन अपेक्स मॉनेटरी institution of a country who regulates the monetary system of that country. For example, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके फॉर एग्जांपल एसबीआई, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड सो ऑन। ये कमर्शियल बैंक के एग्जांपल हो, ये जो है कि हमारे सेंट्रल बैंक के हैं। तो ये सेंट्रल बैंक हमारा हो गया। उसके बाद जो है कि जब सेंट्रल बैंक के बारे में हम जान रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो है, जब मॉनेटरी सिस्टम को यह रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करने के लिए इनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके वह मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई, तो इसके जो है, इसको दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। एक जो है क्वांटिटेटिव और दूसरा जो है क्वालिटेटिव, या हम ये कहें क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है कि वो यूज करते हैं। एक जो है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, दूसरा जो है कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई को अफेक्ट किया जाता है। जैसे ही आरबीआई इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है, तो इकोनॉमी में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई है वह अफेक्ट होती है। सपोज 1000 करोड़ के बराबर की जो है कि मनी सप्लाई अभी चल रही है, इन्फ्लेशन की स्थिति है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को जो है कि माध्यम से वह टोटल मनी सप्लाई को कम कर देती है। तो इससे जो है कि ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज अफेक्टेड। लेकिन कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं जहां फिनांस की आवश्यकता होती है, जहां पैसे की आवश्यकता होती है, क्रेडिट की आवश्यकता होती है। अगर वहां भी जो है कि वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई कम हो जाता है, तो वह जो है कि बैडली अफेक्टेड होगा। तो इन दैट केस आरबीआई जो है जिन इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है उसको क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, और इसे कहा जाता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें जो है कि जिस समय फंक्शन को देखेंगे, उस फंक्शन में हम लोग फिर इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये जान लें क्वांटिटेटिव में कौन कौन से हैं। एक हो गया बैंक रेट और डिस्काउंट रेट, दूसरा जो है रेपो रेट, तीसरा रिवर्स रेपो रेट, चौथा कैश रिजर्व रेशियो CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ओपन मार्केट
operation. These are the quantitative monetary instruments used by RBI to control the money supply in economy. Qualitative, that is margin requirements, rationing, moral suasion. ये हमारी जो है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इसके बारे में हम लोग जान लें कि बैंक रेट क्या है। इट इज दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। वह ऐसा रेट है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जिसके आधार पर उधार देती है, जिस रेट पर उधार देती है। सपोज इट इज 10%। इसका मतलब है कि जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास उधार के लिए जाएगी तो वह उस पर जो है कि 10% चार्ज करेगी, और जो इंटरेस्ट के रूप में जो है कि कमर्शियल बैंक पब्लिक से लेती है। यह जो है कि सेंट्रल बैंक इज द होलसेलर ऑफ क्रेडिट। वह होलसेलर है, जैसे कि कपड़े की दुकान है, होलसेलर जो है कि 5% पे जो है कि प्रॉफिट पे सामान देता है, और रिटेलर जो है कि हम लोगों से उससे ऊंची कीमत पर जो है उसे बेचती है ताकि उनके भी प्रॉफिट हो। तो अगर जो है कि होलसेलर अपने कमीशन को बढ़ा दे तो रिटेलर भी जो है कि उसकी कीमत को अधिक करके जो है लेंगे, उसको कहा गया बैंक रेट। इट इज दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक lends to commercial bank. It is also known as discount rate because bills of exchange presented by the commercial banks are discounted by central bank. Now we have more concepts. बैंक रेट और डिस्काउंट रेट, इसको हमने देखा। अगर जो है कि क्रेडिट को बढ़ाना होता है तो बैंक रेट को कम कर दिया जाता है, उधार जो है सस्ता हो जाता है। वहीं अगर जो है कि क्रेडिट को कम करना होता है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। रेस्ट ऑपरेशन भी इसके साथ साथ बताते जाएंगे। वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।